یہاں میں ایک بہت ہی ایمان افروز نکتہ جو ہے آپ لوگوں کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ مقام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کیا. چونکہ کسی نے آپ کو مقام زہرا مولوی صاحب بتایا نہیں، پڑھایا نہیں، سنایا نہیں، پہنچایا نہیں. اگر پہنچایا ہوتا، آپ نے پڑھا ہوتا، جانا ہوتا، مانا ہوتا تو ایسی باتیں کرنے سے 1000 دفعہ پہلے سوچتے کہ میں کس ہستی کے بارے میں، کس کی بارگاہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. کیا اس کی بارگاہ میں یہ جملے میرے موضوع ہیں؟ کہیں گستاخی اور بے ادبی، کہیں میرا ایمان تو زائل نہیں ہو جائے گا؟ آپ نے سوچا ہوتا. یہ جو بڑی ایمان افروز بات بتانا چاہتا ہوں، اس کو ملا واعظ حسین کاشفی، بہت بڑے یہ محدث گزرے ہیں، حنفی تھے، اور ان کی بڑی معروف کتاب ہے روضۃ الشہداء. چونکہ یہ کتاب فارسی میں لکھی تھی آپ فارسی زبان کے بہت بڑے مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، معلم بھی تھے، اور خطیب الاثر تھے، اور اہل بیت اطہار کی محبت میں مٹے ہوئے تھے. علامہ واعظ حسین کاشفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی کتاب ہے روضۃ الشہداء. اس کی 2 جلدیں ہیں، اور اس کو علامہ سائم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے. سائم چشتی صاحب نے، چونکہ یہ فارسی کی کتاب تھی، فارسی کی، تو انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا. یہ بھی آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اس کا صفحہ نمبر 206 پہ اور 207 سے آگے یہ مضمون چل رہا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. بڑی خوبصورت اور بڑی ایمان افروز آپ کو یہ کتاب ملے گی اگر آپ اس کا مطالعہ کریں. یہاں میں ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام، چونکہ آقا علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام جنگ کے لیے، غزوہ کے لیے تشریف لے کے چلے گئے، تو امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے گئے. جب پیچھے پیچھے آپ بھی تشریف لے کے چلے گئے تو آپ جو ہے راستہ گم ہو گیا. آپ ابھی ادھر ہی تھے تو ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا صالح. اس نے کیا دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، اتنا پیارا، اتنا حسین جمیل بچہ. اس نے ایسا کیا، اس کو اٹھا لیا اور اپنے گھر میں لے گیا. جب گھر لے گیا تو جا کے امام حسین علیہ السلام کو چھپا دیا. ادھر پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے جب کافی انتظار کیا تو امام حسین علیہ السلام گھر واپس تشریف لے کے نہ آئے تو آپ پریشان ہو گئیں. روایت میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ آپ دروازے تک گئی، پھر واپس پلٹی، دروازے تک گئی، پھر واپس پلٹی. آپ کی بے قراری میں، آپ کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا. ظاہر ہے آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، آقا علیہ السلام کا منظور نظر ہے، مولا علی علیہ السلام کا لخت جگر ہے. تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جن کو اپنی گود مبارک میں لے کے چکی چلاتی تھی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، آپ کے دل کا چین تھا، آپ کی آنکھوں کا نور تھا وہ بیٹا، وہ شہزادہ. تو جب وہ کافی دیر گزر گئی، آپ بڑی پریشان ہیں، آپ غم میں آ گئی، بڑی پریشانی میں آ گئی. تو امام حسن علیہ السلام کو پیچھے بھیجا کہ جاؤ بیٹا اپنے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ. امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ پیچھے چلے گئے، تلاش کرتے 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 کرتے. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، جب تلاش کرتے کرتے کھلے میدان میں پہنچے تو وہاں آپ کو ایک ہرن نظر آیا. تو آپ نے اس ہرن کو مخاطب کیا، امام حسن علیہ السلام نے، وہ شہزادہ مصطفیٰ نے کہا کہ ہرن تو نے میرے چھوٹے بھائی کو نہیں دیکھا، حسین ابن علی کو نہیں دیکھا؟ تو اللہ رب العزت نے اس ہرن کو زبان عطا کر دی. اس نے آگے جواب دیا امام حسن علیہ السلام کو کہ اے شہزادہ مصطفیٰ، اے لخت جگر مرتضیٰ، اے پاک بی فاطمہ الزہرا کے نور نظر، اے ان کے دل کا چین، اے ان کے دل کے ٹکڑے. ان کو سہل نامی ایک یہودی لے گیا ہے اپنے گھر کی طرف. تو امام حسن علیہ السلام نے جب ہرن سے یہ بات سنی تو آپ پھر اس یہودی کے گھر تشریف لے گئے اور جا کے اس کو مخاطب کیا. وہ گھر سے باہر نکلا تو امام حسن علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے، عمر کا تعین کریں اور آپ کی فصاحت و بلاغت دیکھیں، آپ کا انداز تکلم دیکھیں، انداز گفتگو دیکھیں، آپ کا نالج دیکھیں، فہم و ادراک دیکھیں، شعور دیکھیں، یہ بلاغت دیکھیں، یہ الفاظ کا خزانہ دیکھیں. آپ نے اس کو کہا کہ تو نے میرے بھائی حسین ابن علی کو چھپا لیا ہے، اٹھا کے لے آیا تو اس کو واپس کر دے. تجھے نہیں پتا تو نے کس کو اٹھایا ہے؟ میں حسن ابن علی ہوں، وہ حسین ابن علی ہے.
मैं आका अलैहिस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लख्ते जिगर हूं। तो वो कहता है कि वो फातिमा तु ज़हरा का बेटा है। तो यहूदी कहता है वो फातिमा तु ज़हरा कौन है? तो आप फरमाते वो सादात की माँ है और वो सआदतों का मजमुआ है। उनके लिए अहले मैशर की निगाहें झुका दी जाएंगी और उनका इसमें ग्रामी बतूल अजरा फातिमा बतूल ज़हरा है। वो बदा तो रसूल हैं, वो हया का पैकर हैं, वो इस्म तहारत का पैकर हैं, वो ताहिरा हैं, वो सैयदा हैं, वो जाहिदा हैं, वो जय्यदा हैं, वो आसिमा है, वो राकिया हैं, वो साजिदा हैं, वो मखदूमा कायनात हैं, वो मासूमा कायनात हैं, वो सईदा कायनात हैं, वो सैयदातुन निसाउल आलमीन है। जब उस यहूदी ने ये बलागत देखी तो वो कहते हैं अच्छा वो तो पता चल गया कि वो फातिमा तु ज़हरा के लख्ते जिगर है, तो उनके बाबा कौन है? हाय हाय हाय। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे वालिद ग्रामी वो शेर यज़दां हैं, वो असदुल्लाह हैं, वो नूरुल्लाह हैं, वो अल्लाह के शेर हैं, वो रसूलुल्लाह के अखू हैं, वो अखू रसूलुल्लाह है, वो मैदान हरब हैं, वो मैदान हरम में तलवार चलाने वाले हैं, मुनकरीन की गर्दनें उड़ाने वाले हैं, मुनाफिकीन की गर्दनें उड़ाने वाले हैं, कुफार को जहन्नम पहुंचाने वाले हैं। अगर तूने मेरे भाई हुसैन को वापस ना किया तो मैं अपने बाबा को कहूंगा और वो यहूदियों का नामो निशान मिटा देंगे, इनकी नस्लें खत्म कर देंगे। और मैं अपने नाना को कहूंगा वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करेंगे और कायनात में इस रुए जमीन पर कोई यहूदी जिंदा नहीं बचेगा। मैं अपनी अम्मी फातिमा तु ज़हरा की बारगाह में अर्ज करूंगा, वो आपके लिए बद्दुआ करेंगी, दुनिया में कोई यहूदी बाकी नहीं रहेगा। तो वो कहते अच्छा वो तुम्हारे नाना कौन है? तो फरमाया वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो कंदील बुजुर्गी का दरख्शंदा सितारा हैं, वो नूर हैं, वो हबीबुल्लाह हैं, इमामुल अंबिया हैं, वो अल्लाह के हबीब हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का नूर हैं, वो अल्लाह के महबूब हैं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, वो आखिरी नबी हैं। तो जब ये सारी बातें सुनी तो वो यहूदी कहता है कि मैं आपकी बारगाह में माफी का तलबगार हूं, पहले ऐसा करें मुझे कलमा पढ़ाएं। यहूदी ने उस साले ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अदब के साथ तज़ीम के साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करके और कहता है मैं भी आपके साथ चलता हूं। एक रवायत में आता है कि 70 अपने साथ लोगों को लेके वो बारगाह बतूल दर ज़हरा पे पहुंचा और बाहर जाके अपनी इतनी लंबी दाढ़ी थी उस यहूदी की, अब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया था, अपनी दाढ़ी से वो ज़हरा की जो पाक दहलीज थी, पाक ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, अपनी दाढ़ी से झाड़ू देने लगा। हाय 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 हाय। उसको मार्फत हो गई थी ये मुकाम ज़हरा क्या है, ये इस दर के आदाब क्या है, इस दर की तज़ीम का क्या आलम है, तौकीर का क्या आलम है, इस दर के आदाब क्या है, इस दहलीज की रिस्पेक्ट क्या है। अपनी दाढ़ी से झाड़ू देता है दहलीज ज़हरा पे, रोता है, गिड़गिड़ाता है और बारगाह ज़हरा से फरियाद करता है कि पाक बीबी मैंने आपके बेटे हुसैन को अपने घर में छुपा लिया था, मेरे इस अमल की वजह से आपको अजियत हुई है, मैं माफी का तलबगार हूं, मुझे माफ कर दे। अगर आपने मुझे माफ ना किया तो मुझे डर है कि दुनिया में यहूदी बाकी कोई नहीं रहेगा, नस्ल खत्म हो जाएगी, इनकी आल औलाद दुनिया में बाकी नहीं रहेगी। मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गया हूं, मुझे खुदा के लिए माफ कर दे। वो रहमतुल लिल आलमीन की साहबजादी, उनके जिगर का टुकड़ा है, वो किसी साइल को, किसी मोहताज को, किसी जरूरतमंद को, किसी हाजतमंद को खाली कैसे लौटा सकती थी। आपने माफ किया, फरमाया जाओ मैंने तो माफ किया, जाके अली और मुर्तजा से माफी मांगो। मौला अली अलैहिस्सलाम जब गजवा से वापस तशरीफ लाए, उनकी बारगाह में जाके रोता है, गिड़गिड़ाता है, फिर वहां से माफी मिलती है। फिर आप फरमाते हैं ताजदार कायनात की बारगाह में जाओ, जाके ताजदार कायनात की बारगाह में रोता है, गिड़गिड़ाता है कि मैंने आपके हुसैन को छुपा लिया था, आपके हुसैन को मुझे माफ कर दें। आका अलैहिस्सलाम माफ करते, फरमाया अभी भी माफी कबूल नहीं हुई, उस पर मोहर सब्त नहीं हुई, अब आखिरी बारगाह रहती है, अल्लाह की बारगाह में जा। हाय हाय हाय। वो अल्लाह की बारगाह में जाके रोता है, गिड़गिड़ाता है,
7 रोज और एक रवायत में 17 रोज तक वो साले जो यहूदी था पहले बाद में मुसलमान हो गया, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, तौबा करता रहा, इस्तिगफार करता रहा। जुर्म क्या था कि हुसैन इब्न अली ज़हरा के लाल को छुपा लिया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जबरील अमीन को भेजा था आका अलैहिस्सलाम की तरफ कि ऐ हबीब, इसको हमने माफ कर दिया, अब इसको माफ कर दें। फिर जाके आका अलैहिस्सलाम ने उसको खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह की तरफ से भी तेरी माफी मंजूर हो गई है। मैं यह एक बात करना चाहता हूं, उस साले यहूदी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कोई अजियत नहीं पहुंचाई थी, माज़अल्लाह उनको ज़ोदोकोब नहीं किया था, उनको माज़अल्लाह कोई तमाचे नहीं मारे थे, बस अपने घर में ले गया था, जाके छुपा दिया था। उसने पाक बीबी फातिमा ज़हरा को इतनी सी अजियत दी थी तो 17 रोज तक रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, हर दहलीज पे जाता रहा, हर आस्ताने पे जाता रहा, हर दवारे पे जाता रहा, हर बारगाह में जाके मुआफियां मांगता रहा। उस तरह तरतीब देखे किस तरह तरतीब जा रही है। पहले पाक बीबी के दर पे माफी मांगी, फिर अली और मुर्तजा के दर पे, फिर आका अलैहिस्सलाम के दर पे, फिर अल्लाह की बारगाह में जाके मंजूर हुई। तो मैं बात करना चाहता हूं, उसने पाक ज़हरा को अज़ियत दी थी हुसैन इब्न अली को छुपा के। तो जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के रेगज़ार में शहीद किया होगा तो पाक बीबी को कितनी अज़ियत हुई होगी। और हजूर ने फरमाया था, ए फातिमा अलम तालमी अन्ना बुकाहु यूज़नी। जब आका अलैहिस्सलाम पाक बीबी के दरवाजे से आगे से गुजरे तो हुसैन इब्न अली के रोने की आवाज आई। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटा कितनी बार कहा है हुसैन को रोने ना दिया करो, हुसैन के रोने से मुझे अज़ियत मिलती है। किसको? रसूलुल्लाह को। और कुरान में अल्लाह कहता है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरति व अदल्लहुम अज़ाबुम महीना। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं उन पर दुनिया में भी लानत है और क़यामत में भी लानत। अल्लाह ने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। पता चला जो पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अज़ियत देता है वो रसूलुल्लाह को अज़ियत है, और रसूलुल्लाह को अज़ियत अल्लाह को अज़ियत है। जो पाक बीबी की गुस्ताखी और बेअदबी करता है ये रसूलुल्लाह की गुस्ताखी और बेअदबी है, और रसूलुल्लाह की गुस्ताखी और बेअदबी अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी और बेअदबी मानी जाती है, डिक्लेयर कर दी जाती है। तो जो पाक बीबी का अदब करता है, एहतराम करता है, हया करता है, तज़ीम करता है, तौकीर करता है, वो रसूलुल्लाह की तज़ीम और तौकीर करता है। जो रसूलुल्लाह की तज़ीम करता है वो अल्लाह की तज़ीम करता है। पता चला अगर खुदा को राजी करना चाहते हो तो खुदा के हबीब रसूलुल्लाह को राजी कर लो, अगर रसूलुल्लाह को राजी करना चाहते हो तो पाक ज़हरा को राजी कर लो। ज़हरा को नाराज ना करना। हजूर फरमाते हैं, इन्नल्लाह यग़्ज़िबु लिग़ज़बिहि के व यरदा लिरदा के। इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुसनद में रिवायत लेके आए हैं, बेटी जिस पे तू राजी होती है उसी से अल्लाह राजी होता है, जिससे तू नाराज होती है उससे अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको पाक बीबी फातिमा ज़हरा के दर की गुदाई नसीब करे, इस दर की नौकरी नसीब करे, इस घर की गुलामी नसीब करे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।